ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত দেশী বিদেশীৰ পৰ্যটকৰ ভিৰ বিমানবন্দৰত বিহু নৃত্যৰে আদৰণি জনোৱা হয় পৰ্যটকসকলক কাজিৰঙাত 3 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যটন মেলাত অংশগ্ৰহণ কৰিব সেইসকল পৰ্যটকে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰত পৰিদৰ্শন কৰিব পৰ্যটকৰ দলটোৱে ৰাজ্য চৰকাৰে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ উন্নয়ন আৰু পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আহিছে পৰ্যটনে অসমৰ অৰ্থনীতি সবলীকৰণত বিশেষ অৰিহণা আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হোৱাত পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে চৰকাৰে ইয়াৰ পাছতে ভাৰত চৰকাৰৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰালয়ে ঘৰুৱা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উভয় পৰ্যটকৰ বাবে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনা বিশ্বত উজ্বলাই তোলাৰ বাবে প্ৰতি বছৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টুৰিজিম পাৰ্ক অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে এইবাৰ কাজিৰঙাত অনুষ্ঠিত হ'ব এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টুৰিজিম মাৰ্ট এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যটন মেলাৰ বাবে ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় দেশ বিদেশৰ 100ৰো অধিক পৰ্যটক কাজিৰঙাত 3 দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে দ্বাদশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যটন মেলা 2024 দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন পৰ্যটকে অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যটন মেলা 2024ৰ 27 নৱেম্বৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যটন মেলা 2024ৰ বাবে ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱা পৰ্যটকসকলক অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগে পৰিদৰ্শন কৰাব ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদাম ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত পৰ্যটকসকলক উষ্ম আদৰণি জনোৱাৰ পাছতে পৰ্যটকসকলক লৈ যোৱা হয় চৰাইদেউ মৈদামলৈ বিমানবন্দৰত বিহু নৃত্যৰে আদৰণি জনোৱা হয় পৰ্যটকসকলক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যটন মেলাৰ আহোম ৰাজ শাসনৰ 600 বছৰীয়া সোণালী ইতিহাস বহন কৰিছে ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদামে এই ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে এক নতুন পৰিচয় লাভ কৰি আহোম ৰাজ শাসনক পুনৰ বিশ্ব দৰবাৰত উজ্বলাই তুলিলে এই বৰ্ষৰ 21 জুলাইৰ পৰা 31 জুলাইলৈকে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্য সমিতিৰ 46 সংখ্যক সন্মিলনত ইউনেস্কোৱে চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰকো বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদাম বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে চিহ্নিত হোৱাৰ পাছতে দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ ভিৰ বাঢ়িছে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে চিহ্নিত চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰত পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰৰ সৌন্দৰ্যতা যাতে বিশ্বত পৰিচিত হৈ উঠে তাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰত সৌন্দৰ্যতা পুনৰ বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰ্যটকসকলক উপভোগ কৰাৰ সুযোগ দিয়াৰ বাবে কাজিৰঙা 3 দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা দ্বাদশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যটন মেলাৰ এটা দিন চৰাইদেউ মৈদামত কৰা হৈছে এই অনুষ্ঠানৰ বাবে ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱা পৰ্যটকসকলক পোনে পোনে আনা হয় চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰলৈ ইয়াতে দিনটো পৰ্যটকসকলে চৰাইদেউ মৈদাম পৰিদৰ্শন কৰি ৰাওনা হ'ব কাজিৰঙালৈ यार हमारा अभी तक जो अरेंजमेंट दिल्ली से जो हम अभी तक आए हैं अरेंजमेंट बहुत बढ़िया हुआ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड आई गिव कॉम्प्लीमेंट टू द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड द assemblies government here who have taken care of us and I'm sure the balance trip will be very good. Very happy with the arrangements and I wish all the best to you guys. And I'm sure the balance 3 days we will have a great time and we learn a lot and meet people. क्या आशा करेंगे इवेंट को क्या आशा लेके आ रहे हैं आशा ये लेके आ रहे हैं कि एक हम इसको गवर्नमेंट के तरीके से भी देखेंगे और टूरिज्म कैसे बढ़ सकता है यहाँ पे और जैसे आई थिंक हर जगह इंडिया में से भी लोग आए हैं थोड़े बाहर से भी जो लोग आए हैं उनको भी मिलेंगे उनका भी व्यू देखेंगे एंड आई थिंक पोटेंशियल तो बहुत है एंड आगे अब जैसे गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट ले रही है तो बढ़ेगा मेरे ख्याल से टूरिज्म बढ़ेगा तो इकॉनमी बढ़ेगी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोग भी ठीक समझ करेंगे यही है हमारा जैसा कि आप लोग सब देख ही रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग आज एयर इंडिया के चार्टर से 100 से भी ज़्यादा लोग आज इस ITM के लिए जो है मार्च के लिए काजीरंगा जा रहे हैं ये 12वां एडिशन है और असम में ये तीसरी बार हो रहा है ना जैसा कि हम जानते हैं ये नॉर्थ ईस्ट
का टूरिज्म जो है, नॉर्थ ईस्ट के जो कल्चरल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए इवेंट किया जाता है। हमारे साथ चार्टर में जो हैं वो डोमेस्टिक बायर्स, इंटरनेशनल बायर्स जो हैं, जो यहाँ की आइटिनरीज खरीदेंगे और फिर लोगों को यहाँ लेके आएंगे, डोमेस्टिक इन्फ्लुएंसर्स, फॉरेन से हमारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आए हैं हमारे। इसके अलावा हमारे जो है इस ITM में बहुत सारा प्रेस और मीडिया है जो इसको कवर करेगा। आइडिया बेसिकली ये है क्योंकि 2024 जो है एक बहुत ही विशेष वर्ष है नॉर्थ ईस्ट के लिए। हम 6 महीने हुए हैं अभी हमारे जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की एंट्री है, चिराई दो मोइदम जो आपके यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है, उसको हम दिखा रहे हैं, शोकेस कर रहे हैं असम के लिए। इसके अलावा 12वां वर्ष है हमारा ये ITM का। उसके अलावा और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम 25 साल सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल की, जो हम लोगों ने नागालैंड के साथ खड़ा किया है। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि काजीरंगा को हमने क्यों चुना। काजीरंगा को हमने इसलिए चुना क्योंकि हम काजीरंगा के 50 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं एक नेशनल पार्क होने के, और 40 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के। इसके अलावा जो हम देखते हैं कि ये एक B2B इवेंट है जिसमें सारे जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के अष्टलक्ष्मी स्टेट्स जिनको हम कहते हैं 8 सिस्टर स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, उन सब के प्रेजेंटेशन होंगे। उन्होंने कौन से नए डेस्टिनेशंस खोले हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, कहाँ कहाँ एयरपोर्ट्स आए हैं, कहाँ फ्लाइट कनेक्टिविटी इम्प्रूव हुई है, कहाँ नए होटल्स आए, कौन से नए होम स्टेज खुले हैं, कौन सी नई आइटिनरीज डेवलप हुई हैं, उन सबको सब स्टेट्स जो हैं वो शोकेस करेगा, इन्फ्लुएंसर्स के लिए, टूर ऑपरेटर्स के लिए, मीडिया के लिए। इसके अलावा पैनल डिस्कशंस होंगे जिसमें हम बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं जिन्होंने कल्चरल स्टार्टअप्स खोले हैं, टूरिज्म में सर्विस प्रोवाइड करी है, डिजिटल इंटरवेंशंस किए हैं जिससे टूरिज्म को इस क्षेत्र में बढ़ावा मिल सकता है। टूरिज्म को बढ़ावा के साथ साथ विजिबिलिटी मिल सकती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को जितनी ज़्यादा विजिबिलिटी मिलेगी उतने ज़्यादा लोग यहाँ आएंगे, बिकॉज ये रीजन जो है बहुत ही ब्लेस्ड है। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, यहाँ के लैंडस्केप बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर ऐसी केव्स हैं, ऐसे स्टोन हेंजेस टाइप की चीज़ें हैं, बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जिनके विविध विविध खाने हैं, विविध विविध कपड़े हैं, विविध विविध प्रकार की चीज़ें हैं। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस पूरे रीजन में जो है सस्टेनेबल टूरिज्म जो है वो महिलाएं और यहाँ के जो यंग लोग हैं, यहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनको प्रमोट करते हैं, जिससे टूरिज्म हमेशा सदा के लिए अवेलेबल रहेगा इस क्षेत्र में। तो भारत सरकार और नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स मिल के जो है ये टूरिज्म का इवेंट करते हैं। इस बार हम एक और नई चीज़ कर रहे हैं कि जो बच्चे देश विदेश से, विदेशों से 20 अलग अलग देशों के बच्चों को हम लोग ने यहाँ जो यहीं पढ़ते हैं उन लोगों को भी हमने एकत्रित किया है कि आइए देखिए पूरा नॉर्थ ईस्ट। अगर आप असम में पढ़ते हैं तो शायद आपने शिलोंग नहीं देखा होगा, मिजोरम नहीं देखा होगा, नागालैंड नहीं देखा होगा। उन सब बच्चों के साथ भी हमें इंटरेक्शन यहाँ पर करने वाले हैं। और हम आज जो है जो हमारे साथ इतने सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हैं उनको पहले तो हम चिराई दो मोइदम लेके जाएंगे, उसका दौरा कराएंगे, उसको घुमाएंगे। उसके बाद एक हम लोकल जो है उनको लंच परोसेंगे जो सभी यहाँ के रीजन्स का खाना होगा। उसके बाद हम उनको जो है एशिया का सबसे पुराना थिएटर जो शिव सागर में है, जिसको रंगघर कहते हैं, उसके दर्शन उनको कराएंगे। उसके बाद फिर हम लोग काजीरंगा जाएंगे। कल हमारा जो है इनॉग्रेशन होगा। हमारे आदरणीय मंत्री महोदय, यहाँ के आपके यहाँ के मुख्यमंत्री, अरुणाचल के मुख्यमंत्री, सभी अष्टलक्ष्मी स्टेट्स के टूरिज्म मिनिस्टर्स, असम के फॉरेस्ट मिनिस्टर्स, MP काजीरंगा और भी बहुत सारे अनेक प्रकार के अतिथिगण जो हैं इसमें शामिल होंगे। उसके अलावा एक एग्जीबिशन है नॉर्थ ईस्ट की जो सारे 8 स्टेट्स के बहुआमी जो उनके क्विजीन्स हैं, एग्जिबिट्स हैं, क्राफ्ट्स हैं, वीव्स हैं, कपड़ा है, टेक्सटाइल है, जो भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बैम्बू केन से आप लोग बहुत ही सस्टेनेबल तरह की चीज़ें बनाते हैं, तो वो भी रिटेल करेंगे। बिकॉज शॉपिंग टूरिज्म भी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को दिखाएंगे तो यहाँ से लोग सुवेनियर्स लेके जाएंगे, तो यहाँ का सामान पॉपुलर होगा, सामान के साथ जो है कहानियाँ यहाँ की पॉपुलर होंगी, लोग यहाँ के पॉपुलर होंगे। तो ये भी हम कर रहे हैं। फिर पैनल डिस्कशंस होंगे जिसमें हम उनसे बात करेंगे जिन लोगों ने यहाँ पर काम किया है। उसके अलावा केस स्टडीज़ होंगी, क्योंकि हम लोगों ने जब G20 किया था तो उसमें गोवा रोड मैप में हम लोगों ने बहुत सारी यहाँ की जो केस स्टडीज़ थी पूरे भारत की, उनको UN टूरिज्म के डैशबोर्ड पे डाला था। तो वो केस स्टडीज़ यहाँ पर हम लोग हाईलाइट करेंगे।
ताकि पत्रकार उनके बारे में लिख सके, बहुत बड़ी बड़ी मैगजीन्स में उनको मौका मिले छपने का। तो नॉर्थ ईस्ट लोगों की वजह से, क्योंकि टूरिज्म केवल जगह नहीं है, टूरिज्म लोग भी होते हैं और लोग ही टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। तो हमारा फोकस यहाँ के लोगों के ऊपर है, उनकी कहानियों के ऊपर है, उनके ट्रेडिशंस के ऊपर है। तो इसी तरह से एक बहुत आयोजन होगा और शाम को जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबके लिए एक बहुत बड़ा सा कल्चरल प्रोग्राम करेगी और साथ में एक डिनर थ्रो करेगी और असम गवर्नमेंट कल करेगी। तो हम 6 अलग अलग प्रकार के खाने हैं जिसमें आपको यहाँ के सभी स्टेट्स के अलग अलग भोजन व्यंजन उनको टेस्ट करने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है बहुत ही होलिस्टिक है, जगहों के बारे में भी है, लोगों के बारे में भी है, क्राफ्ट के बारे में भी है और गैस्ट्रोनॉमी के बारे में भी है। तो एक ये बहुत बड़ा एनुअल हमारा समागम होता है और इस बार हमने जैसा बताया कि बहुत ही विशेष है, बिकॉज ये बहुत सारे इसमें छोटे आयाम जुड़ गए, जिसकी वजह से 2024 का ITM हमारे लिए बहुत स्पेशल हो गया।